पावन धरती पे आपका हार्दिक अभिनंदन है संजय भैया। हाँ, बहुत बहुत जोहार आपके तमाम जैसा कि मैं बताना चाहूँगा @डिजिटल ब्लॉग के तमाम दर्शकों को कि इन्होंने शुरू से ही योगदान दिया है स्टूडेंट यूनियन में। झारखंड में जितने तरह के स्कैम्स हुए, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ स्कैम विच वाज गोइंग थ्रू इन झारखंड। लाइक रिसेंटली वी हैव सीन द डिफरेंट काइंड ऑफ level of a scam which is going through. So suppose that you will be the chief executive officer, like a chief minister of the Jharkhand, then what will be your mechanism to erase such kind of scam? What is going over in exams like JSSC, JPSC and all over the institutional bodies involved in corruption. The main problem is this thing. And first of all, I want to say one thing. Jharkhand needs too many leaders like Tiger Jairam Mahto. So suppose that you Jairam Mahto is the chief minister, and it is totally depend upon the Jairam Mahto, that is how to handle the situation in the circumstances, or bureaucracy. It is depend on the team. It is depend. So what will be the impact of bureaucracy over in this politics? As we know, Jharkhand have a political instability since 2000. Once the Jharkhand has been separated from Bihar, Yes. there are more and more political instability over in Jharkhand. Due to which there are certain kind of lack of development over in Jharkhand. So what will be the opinion for this? No. In bureaucrats of Jharkhand, the lack of seriousness, and the bureaucrats of no have any planning. No any planning for tourism, no any planning for education, no any planning for examination. Only the total bureaucracy and the Jharkhand bureaucrats involved in corruption. Just like you see Chavi Ranjan, Pooja Singhal, such a name. Yes. So Rajiv Gaba, he was also Home Secretary of Jharkhand earlier. So problem is the coordination between politicians and bureaucrats, and the bureaucrats of Jharkhand is totally involved in scam, in mining scam, in examination scam, in paper leak scam, too many scam. So I want to say to the Jharkhandi, if you want to cast your vote, then finally decide ki who is your leader, who is thinking about Jharkhand, who is really think for Jharkhand. So it is depend on leaders, it is depend on bureaucrats, and it is depend on public also, how to create good leaders in Jharkhand. Suppose that you will be the minister of Jharkhand. So what will be the roadmap to give the employment of the student and the people of Jharkhand? The first of all, the displacement policy of Jharkhand, rehabilitation and resettlement policy of Jharkhand, the domicile policy of Jharkhand, and recruitment policy of Jharkhand. This is the foundation scheme and foundation policies of Jharkhand. And if you see in Jharkhand 2 decades journey, no any policy is finally just like कि ये कह सकते हैं कि झारखंड के भीतर जो नीतियाँ बनी, वो नीतियाँ विधानसभा के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर कानून का स्वरूप नहीं धारण कर पाई। लोकसभा के स्तर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 9 शेड्यूल में ये डोमिसाइल पॉलिसी को शामिल करने के बाद, यस। एंड अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपने देखा कि जो 1932 के खतियान के आधार पर डोमिसाइल पॉलिसी बननी थी, वो राज्यपाल ने रिजेक्ट किया। सो आप जब ये गौर करते हैं कि झारखंड के भीतर पिछले दरवाजे से कौन लोग यहाँ पर झारखंड के नियमों को, कानूनों को एक तरीके से रोक रहे हैं। बिहार में 75% का रिजर्वेशन लागू होता है, लेकिन जब आप झारखंड में गवर्नर के रोल को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ के जो गवर्नर हैं वो पिछले दरवाजे से झारखंड के लिए ना सोच करके राजनीतिक दल के सोच के अनुरूप सोचते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बड़ी समस्या है। मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर में झारखंड को जो स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान यहाँ पर सौतेला व्यवहार का है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। Dada, I have one question for you as well. Suppose that you are the
you are the minister of, suppose that there is a Bokaro, you are the minister of that particular area, and there are two instantaneous situation going to be happen, but both the situation and both the incident are certain. So first one is a mob, there is a women's college, so there is a chances, there are some goons are planning to do acid attack. Apart from this, there is a Muslim minority area, there is a, both the incident are certain. So there is a Muslim minority area where there is a chances to have a mob lynching. So where would you like to place yourself firstly, and where would you like to go firstly? No, first of all, I want to say one thing. The religious... My question is clear. Both the incident are certain. I can understand that your subordinate can handle, but where would you like to place yourself firstly? Safety of life is first priority. Safety of life is first priority for us. Safety of life to both the situation. There is a mob lynching, there is a certain safety. There is a women's college, safety is also there. Then how can you handle this situation? No, it depend on administration. The problem is not... Yeah, exactly. It is depend on administration. It is depend on administration. मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और मैं 2017 में मैंने ग्रेजुएशन करा हजारीबाग से, और मैं भी तैयारी में था और एग्ज़ाम मैंने निकाला है, 2-4 एग्ज़ाम मैंने करे हैं, लेकिन नहीं हो पाया मेडिकल में और कुछ पैरामीटर थे। लेकिन अभी मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ अमेरिका में, तो मैं अभी अमेरिका में ही काम करता हूँ। लेकिन मेरा दुख दर्द है कि मैं झारखंड में रह के काम करता, तो आप एक स्टूडेंट को एज ए बोल सकते हैं कि हम हंगर हैं यहाँ के नौकरी पाने के लिए, तो आप क्या सलाह देंगे, अभी क्या करना चाहिए? मैं ये चाहूँगा कि जो एक्सपोजर आपने गेन किया फॉरेन में जा कर के, अगर आप जाते हैं यूएसए, वहाँ पर कुछ सीखते हैं और जो करियर में ब्रेक आपको मिला, उसका अगर कुछ आउटकम निकल कर के सामने आ रहा है आपके लाइफ में, तो उससे आप झारखंड को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, इस पर आप एक प्लान बनाइए और झारखंड को आप क्या कुछ दे सकते हैं। एक जॉब क्रिएटर होना और एक जॉब सीकर होना, दोनों में फ़र्क है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में आप जैसे जो नौजवान हैं, आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं, वो जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। अगर वो वर्ल्ड लेवल पे जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पर जा रहे हैं, वो कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो मैं आपको ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में आप झारखंड के लिए कुछ ऐसा प्लान करिए कि यहाँ पर कैसे और भी जॉब को क्रिएट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग बार बार कहते हैं कि टूरिज्म को लेकर के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ पे काम किया जाना चाहिए। और अगर इन पॉसिबिलिटीज़ पर हम लोग काम नहीं करेंगे गंभीरता से, तो यहाँ पर हम लोग जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप देखते हो कि यहाँ पर जो मेन रोज़गार का हमारा मसला रहा है, तो विस्थापन से सारे लोग यहाँ परेशान रहे। खेती यहाँ उसी स्तर की होती है कि पेट पाला जा सके। ऐसे में यहाँ पर के लोगों को आर्थिक संपन्नता अगर बढ़ानी है, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इनको स्किल्ड किया जाए, इनको ट्रेंड किया जाए, यहाँ पर जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले, और दुनिया के दूसरे देशों के लोग आकर के, दूसरे राज्यों के लोग आकर के यहाँ पर कैसे पैसा खर्च कर सकते हैं, इस पर एक विकल्प तलाशने की कोशिश करनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है दादा, थैंक यू, शुक्रिया। बोलना चाहेंगे कि अभी झारखंड में बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट का कोर्सेज झारखंड सरकार करा रही है, पर इसमें बहुत सारी कमियां हैं, आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। एक करने का डेडिकेशन होना और एक फाइलों में करना, दोनों में फ़र्क है। आप देखिए कि दुनिया में, आप अगर दुबई का गौर करिए, 1990 के डिकेड में दुबई क्या था? उसके पास रेत था, बालू था, पानी भी नहीं था। लेकिन पिछले 30-35 सालों में आप देखिए कि दुबई पूरे दुनिया में टूरिज्म का एक सेंटर पॉइंट बना। उसने क्या किया? एक कुछ अट्रैक्शन पॉइंट बनाया, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बना दिया। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि हमारे पास इतने सारे आइकॉन हैं, सिद्धू कान्हू हैं, नीलांबर पीताम्बर हैं, बिरसा मुंडा हैं, तिलका मांझी हैं, और इन लोगों के आइकॉन के, इन लोगों के अगर रिवॉल्यूशनरी हिस्ट्री को देखेंगे, तो अगर इन लोगों के इतिहास पर, इन लोगों के जीवन पर कोई बहुत बड़ा केंद्र बना जाए, कुछ बहुत बड़े स्टैचू बनाया, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अगर हम स्टैचू ऑफ रिवॉल्यूशन बनाते हैं बिरसा मुंडा के नाम पर, पूरी दुनिया के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे कुछ सेंटर अगर बनाते हैं, रिसर्च सेंटर बनाते हैं अपने आर्ट एंड कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर के, तब दुनिया के लोग अट्रैक्ट होंगे। दुनिया को आप क्या दिखाएंगे? ठीक है, जंगल झाड़ दिखाएंगे कि हमारे पास पहाड़ है, नेचुरल प्लेसेस है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो करना होगा। तो इन सारे पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है, ये मैं महसूस करता हूँ। दादा, झारखंड में 4 साल पूरा हो गया, 4 साल पूरा होने को है, और झारखंड सरकार अभी तक कोई भी फेयर एंड इनफ कोई भी एग्ज़ाम नहीं करा पाई है।
और मेरे को लगता भी नहीं कि ये लोग कराएंगे। तो आप क्या सलाह देंगे मुख्यमंत्री को, मतलब क्या होना चाहिए? नहीं, पहली बात तो पॉलिसी को इन लोग दुरुस्त करें। नियुक्ति इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि वो पॉलिसी जाकर के हाई कोर्ट में चैलेंज हो जा रही है, और अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई पॉलिसी बार बार चैलेंज होती रहेंगी तो निश्चित तौर पर नियुक्ति की प्रक्रिया फंसेगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसको चुनौती ना दिया जा सके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और वो बनेगी झारखंड के भावनाओं के आधार पर। और यहाँ के वैसे लोगों को ये समझाना होगा, कन्विंस करना होगा कि अगर आप झारखंडी माटी के नहीं तो निश्चित तौर पर इस देश में कहीं भी आपका डोमिसाइल होगा, इस देश के आप कहीं के निवासी होंगे, तो आप वहाँ के स्थानीयता का लाभ लीजिए, यहाँ के स्थानीयता का लाभ यहाँ के लोगों को लेने दीजिए, तब ये झारखंड की जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ वो ठीक हो पाएगी। दादा, जैसा कि हम देख रहे हैं जेबी केसेस में आप जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और नेक्स्ट लेवल के आप हैं और लीडर हैं जेबी केसेस का, तो हम क्या मतलब हम लोग भी चाहते हैं और हम लोग का भी दिली इच्छा है कि आप गिरिडीह से सांसद लड़ें। तो आपका नेक्स्ट मतलब क्या है, क्या प्लानिंग क्या है आपका? नहीं, देखिए, जब भी कोई एक संगठन निर्णय लेता है, संगठन जब कोई चीज़ों पे बनाता है प्लानिंग, तो वो संगठन का निर्णय होता है, किसी व्यक्ति का निर्णय नहीं हो सकता। और संगठन इन सारे पहलुओं पर अभी आत्ममंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, और इन सारे पहलुओं पर हम लोग अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी संगठन का निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, और उसको मानते हुए एक सैनिक की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। हम तो चाहेंगे और जनता भी चाह रही है, पर आपका पर्सनल राय भी होना चाहिए कि आप जो है यहाँ से हजारीबाग से लड़िए, क्योंकि हम लोग का जैसा विचार है, वो जो सांसद हैं उनका हम सुने कि मॉरिशस में ज़मीन है, राइट? तो वो दुख दर्द क्या समझेगा गरीब का। लेकिन आप जिस स्तर से आ रहे हैं, आप हम लोग के दुख दर्द को समझिएगा। हम लोग वहाँ पढ़े हैं, लिखे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट को जानते हैं, तो आपका पर्सनल राय क्या होगा वहाँ के सीट को लेकर के? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ साफ तौर पर कि अगर झारखंड का कोई भी नौजवान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कदम रखता है, चुनावी राजनीति में कदम रखता है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन चूंकि हम लोग एक बहुत बड़े संगठन है, आज इस संगठन में लगभग 1 करोड़ लोग हैं वैचारिक तौर पर, और ऑफिशियली अगर हम लोग सारे लोगों को जुटा देंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। तो जब इतनी बड़ी संख्या है तो आप कोई निर्णय अकेले नहीं ले सकते। एक बार हम लोग लोगों से राय पूछेंगे, जो जनता की राय होगी उसके अनुसार हम लोग निर्णय लेंगे। फिलहाल मैं ये बताने में समर्थ हूँ कि मेरा व्यक्तिगत निर्णय क्या होगा, क्योंकि संगठन के निर्णय के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और संगठन का निर्णय जो होगा वही सर्वोपरि होगा। अच्छा, और एक चीज़ इस पर बात करना चाहेंगे। ऐसा लोगों के द्वारा नहीं बोला जा रहा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोग का जो जेबी केसेस पार्टी है वो महतो का पार्टी है। कास्ट मतलब कि ऐसा है नहीं, मैंने भी देखा है कि हर कास्ट के लोग हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसमें है ही नहीं, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है। तो आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, हम उन लोगों को साफ तौर पर ये जवाब देना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में होता है नैरेटिव सेट करने का गेम। जैसे आप देखेंगे कि इस देश के भीतर रिलीजियस रेडिकलिज्म के बुनियाद पर उसको सेंटर बनाते हुए एक पोलराइजेशन का गेम किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप पॉलिटिक्स में बहुत नीचे स्तर से उठते हैं और बहुत बड़े लोगों को चुनौती देते हैं, तो वो एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करते हैं आपके अगेंस्ट में। तो एक रॉन्ग नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की गई कि किसी कास्ट बेस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बट मैं आपको कुछ नाम गिना देना चाहता हूँ, और संगठन में कई लोग हैं। जैसे हमारे साथ अगर आदिवासी चेहरा के बारे में बात करेंगे तो सृजन हाइब्रू हैं, अजय बंकीरा हैं, दमयंती मुंडा हैं। अगर आप बोलेंगे कि एससी क्लास में कौन है तो हमारे बीच दीपक रवानी है। आप बोलेंगे कि ओबीसी क्लास में और कौन है, हमारे पास महेंद्र प्रसाद हैं, सूरज हैं, तमाम लोग हैं। आप बोलेंगे मुस्लिम चेहरे में कौन है तो हमारे बीच फरजान खान है। आप अगर रजवार चेहरे में बोले तो हमारे बीच संतोष रजवार हैं। तो इस तरीके से कई लोग हैं संगठन के भीतर जो अलग अलग जाति समुदाय वर्ग से आते हैं, और ऐसे लोगों को हम लोग लगातार स्थान दे रहे हैं। और हम लोग जो भी नया लीडरशिप निकल रहा है उनको स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं, और संगठन में सबको ला रहे हैं। एसटी, एससी, ओबीसी और अक़लियत समाज सभी को हम लोग इसमें समाहित कर रहे हैं, और सबको मिला करके ये संगठन एक बहुत समृद्ध संगठन बनेगा, ये बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दादा, आपको आप टाइम दिए। Thank you. और आपका हम अपना पर्सनली बताना चाहेंगे, एज ए मीडिया पैनलिस्ट के तौर पर नहीं, हम आपका बहुत बड़ा फैन है। मैंने आपका इंटरव्यू देखा है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आपने बैठ के दिया है। शुक्रिया। इससे पहले आपका स्टेटमेंट मैंने रांची में देखा है, बहुत सारे स्टेटमेंट मैं आपका देखता हूँ, हमेशा देखता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू भैया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर थोड़ा सा। हाँ, जैसा कि बताना चाहूँगा, अभी मैंने इंटरव्यू करा है संजय मेहता का, जो कि हजारीबाग के हैं और जेबी केसेस के एक प्रमुख लीडर के तौर पे जाने जाते हैं। और इनका इंटरव्यू करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनका राय और विचार जैसा देखने को मिला, ये झारखंड के हित के बारे में सोचते हैं और झारखंड के हितैषी भी हैं, और मैं इनका एक बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल डिजिटल ब्लॉग। हैव अ गुड डे, बाय बाय गाइस, थैंक यू।